everybody. आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। और जी कैसा भी गुजरा आप लोगों का? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र सर सर, आप आप ठीक सुनाइए। हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। Hello, जी students, we are going to revise something about the nuclear magnetic resonance spectroscopy. Here I have shared some slides with you. Hopefully, you may see nuclear magnetic resonance spectroscopy written on this slide. Nuclear magnetic resonance spectroscopy, commonly referred to as NMR, is a technique which exploits the magnetic properties of a certain nuclei to study physical, chemical, and biological properties of a matter. Compared to mass spectrometry, larger amounts of sample are needed but non-destructive. In some techniques, when you analyze any sample, your sample may not be recovered, but in nuclear magnetic resonance spectroscopy, you will see that sample is recoverable. Here is some historical years. You have to remember events relevant to the NMR spectroscopy, as in 1937, 1945, 1953, 66, 75, 80 to 97. In 37, Rabi's prediction and observation of the NMR resonance. First NMR solution and solids all for paraffins is and in 1953 Overhauser Nosy nuclear Overhauser effect was studied. 1966 Anderson Fourier transform NMR was introduced, and in 1975 the Gina introduces the 2D NMR technique. In 1975, uh, after introducing the Gina, one more memorable event in the historical event of the NMR is 1980 when an NMR protein structure by Wadri was introduced. In 1990, 3D proton carbon 13 triple resonance was introduced, and in similarly 1997 ultra high field ROSI is also an important advancement in the NMR. Here some detail of those years, and you may see here some pics of the well-known scientists who contributed in the history of the NMR. You may see here, but now we have to move on the spin of the nuclei. What is the fermions? Odd mass nuclei with an odd number of nucleus. Odd mass nuclei with an odd number of nucleons. All these nuclei
which have odd mass nuclei or odd number of nucleons are present, or those will have some fractional spin. And fractional spin means, such as some examples you are seeing here, proton, carbon 13, fluorine, and phosphorus. All these have half spin, but some other examples are also shown here, which have the 3 by 2, I mean 1.5 spin. Bosons, even mass nuclei with the odd numbers of protons and neutrons, have integral spins, such as the nitrogen, such as proton. Even mass nuclei composed of the even numbers of protons and neutrons have zero spin, sometimes such as the carbon 12, oxygen 16, and the sulfur 32. They may have even number of protons and neutrons, but have the zero spin. Nuclear magnetic resonance, in this technique, you will also have to remember some points. The nuclei of some atom, such as spin, proton, carbon 13, fluorine 19, and the nuclei of many atoms of spin, such as the carbon 12. Moving charge particles generate a magnetic field. When placed between the poles of a powerful magnet, spinning nuclei will align with or against the applied field, creating an energy difference. Using the fixed radio frequency, the magnetic field is changed until this change in energy delta E is equal to Em. When the energies match, the nuclei can change spin states, resonate, in the given of a magnetic signal. This difference of energy will be compensated by the provision of the electromagnetic radiation from the outer source. You will provide some electromagnetic radiations to fulfill this energy gap if you want to shift the lower energy level protons to the higher energy level protons. Already I have introduced you that sometimes at random, uh, whenever we discuss about a classroom type sample room where we scattered the all protons at random. Every proton was have adopted their own spin direction. So have observed that in that classroom, in that sample room, where you have spreaded over the nuclei, all nuclei were having the different directions of the spin. So when you applied the magnetic field on two different walls of that room, then you observe that some of the protons nuclei are all like spinning nuclei have shifted on a lower energy level, and some have aligned them with that external source of the magnetic field, but some resist that external source of the magnetic field. In this way, you classify all the protons in two different categories. One category was against the external
applied field and the other was parallel with the applied field. In this way, due to that classification of two different types of sets of spin was settled down. One set have the lower energy and the other set have the higher energy. And this energy gap or energy difference may be compensated, may be uh, facilitated by an external applied field. On the other hand, if you want to move these protons from the lower energy level to the higher energy level of regard, we are discussing here the energy level related to the NMR. As I have explained you in the previous week, that there are different types of energy differences. When you are study about the energy difference in the electronic shells, it means at that time you will only observe the difference in the K and different levels of the electrons. But in this technique, you will only observe the energy difference between different levels of the NMR, different levels of nuclear energy levels, which are bounded within the nucleus. And if you want to jump from lower energy level to the higher energy level, you will provide some energy to these nuclei. In which form you will provide this energy? You will provide this energy in the form of radio waves. And, you also know the radio waves are very, I mean, the very long wavelengths as compared to all other waves of electromagnetic range. These radio waves having the very lengthy wavelengths, they have very low energy levels. It means, uh, as we explained previously, that in an atom, when you talk about the energy differences of the electronic shells, at that time, energy levels are higher, but as you move from the outer orbital to the inner shell, the energy levels decreases down, and similarly, when you jump inside of the nucleus, definitely inside of the nucleus, energy level is much more lower as compared to the electronic levels. So here's the difference in energy is also a little bit very minor levels, and these energy levels may be compensated by provision of the electromagnetic radiations of what type of electromagnetic radiations? Radio waves. Because radio waves are having longer wavelengths but lower energies. And we require here very lower energies. Okay. When placed between the poles of a powerful magnet, spinning nuclei will align with or against with align with or align against the applied field, creating an energy difference using a fixed radio frequency. The magnetic field is changed until the delta E, a change in energy, a change in electromagnetic radiation energy. When the energies match or resonate, the nuclei can change the spin states or they may jump from lower to the higher. I give off magnetic signal. At that time, when their energy will be resonate, that resonating energy will be absorbed, and at absorption, uh, you will see a signal
in that range of the spectrum, that area of the spectrum. On paper, you will see a signal similarly in such a way. The spectrum, you will see a such type of a signal. Magnetic field, if you will use the 60 megahertz NMR, proton NMR, magnetic field at the rate of 14,000 Gauss, then you will see a sample example NMR spectrum here shown to you, intensity of the magnetic field. This chemical shift this way is represented in the ppm, starting from the 0 to 10. 0 value is for TMS, and signal observed here has been noted or recorded at the 5 ppm. Proton nuclei are shielded by the magnetic field produced by the surrounding electrons. Higher the electron density around the nucleus, higher the magnetic field required to cause the resonance. Such as you may compare here two molecules, the methyl chloride and CH4. Lower electron in methyl chloride, these protons have lower electron density due to presence of the electronegative chloride atom. Because electronegative chloride atom is here, therefore you will observe very low electronic density in this methyl protons. But on another hand, if you see about the CH4, you will see the higher electronic density in these protons of the CH4. Why? Because there is no presence of any electron withdrawing group. Uh, in case of the chloride itself is very greedy towards the electrons. That chloride atom will withdraw all the electrons from the methyl protons. But in case of the CH4, there is no presence of any chloride, bromide, or fluoride, or any electron withdrawing atom is not present here. So you will see, you may decide that there is no, in the absence of any such electron capturing atom, the CH4 protons are surrounded by much more denser electrons rather than the in case of the protons of the CH3CA. So the they will resonate at lower applied field, and methane will resonate at higher applied field. If any proton group have lower electron density, then that will resonate in a very lower applied field. And if an electron have higher electron density, that will resonate in higher applied field. Because when more and more electronic density have surrounded any proton nuclei, at that time you will provide much more external magnetic field which will compensate that shielding of the protons. In this slide, you simply say
if any proton, any nucleus, any nucleus, protonic nuclei, if surrounded by the more and more and more electronic shells, it means that protons are much more shielded, and you should provide much more external applied magnetic field to compensate or to cover that extra cover of the already dense electronic shield around the protons. Four more points you should be keep in mind while you are going to learn about the how to interpret the NMR spectrum. The first one, you should remember how many different types of hydrogens are present in the molecule. But I'm saying to you that whenever you want to run up any spectrum of any analysis compound, in that compound, that molecule, how many types of hydrogens are present? First thing you will recognize that how many type of protons are present in that molecule. You will draw the structure of the molecule or and recognize how many types of, how many groups, how many sets of protons are present in that molecule. Number two, what type of hydrogens, what type of protons, what type of nuclei those are. The second thing you will uh, record or note or observe or memorize or keep in mind, that is how many types there are protons, how many types of protons are present. First thing, types of hydrogens in the molecules. Second thing, what types. The first thing, how many types. The second thing, what are those types? What types of? And I mean, how many types of hydrogens were present are present in the molecule? They will represent the number of signals. Number of signals depend upon the presence of different types of the hydrogens. Okay, student, the third thing you should have remember is the relative areas under signals. How many hydrogens of each type are present? That will be the that will denote or represent the relative area under any signal. Splitting pattern, how many neighboring hydrogens, if there is a hydrogen sequence, a number of hydrogens will be changed in the neighborhood of that signal will split in a very different and unique pattern respective to the presence of the neighboring hydrogens. We will explain all these 4 points.
with 4 points: number of signals, position of signals, area of each signal, and splitting pattern of each signal. Number of signals, which depend on type of hydrogens. Position of signals, what type of hydrogens those are. Relative area of signals, area under the signal depend upon the number of hydrogens each type of hydrogens. Splitting pattern, how many neighboring hydrogens are there. Okay ji. Number of signals, how many different types of hydrogens in the molecule. Magnetically equivalent hydrogens resonate at the same applied field. Magnetically equivalent hydrogens are also chemically equivalent. Number of signals in CH4, CH3, CH3. In CH4, all four hydrogens are chemically have same environment. They are similar to each other. C in CH3, CH3, all these six hydrogens are also similar to each other. We will elaborate this point by some examples. In cyclohexane, each carbon contains two hydrogens. In this way, in this cyclohexane, there are total 12 hydrogens. In CH3, in this example, you are watching here that these three protons and these three protons, all these 12 protons have the similar chemical environment. There is no any difference in the protons of the first methyl group or the other methyl group. All four methyl group protons are similarly present, similar have similar environment in molecule, chemical environment. So all protons are similar. They will show this only one signal. But in case here, when you observe in case of the benzene, each carbon contain one hydrogen, and all those six hydrogens at these six corners have the similar chemical environment. But when you attach three CH3, CH3, two more methyl groups, then you will say that here are this CH3 and this CH3, six hydrogens, three hydrogens, these one, and three hydrogens, these ones. All these six hydrogens have similar environment, but the hydrogens present on this corner, this corner, this corner, and this corner. Protons or hydrogens present in these corners are not similar to the protons of this CH3 and CH3. It means in this molecule you have two sets of protons. In this molecule you have two sets of protons.
Present here. कैसा लग रहा है? Sabah, Sophia. डियर स्टूडेंट्स, कुछ समझ भी आ रही है या नहीं? किधर गए हो सारे? म्यूट हो गए लगता। म्यूट हो गए हो। ये सर समझ आ रही है, समझ आ गया सारा। समझ आ रही है सर। बेहतर हो गया। सर यार आवाज नहीं आ रही थी सर। समझ आया। किसकी आवाज नहीं आ रही? ज़िया, आप कोई ना कोई सर आपकी पहले आवाज नहीं आ रही थी, कब? अब आ रही है सर। और सर आप ठीक हैं? क्यों वारिस हमीद, आवाज कौन सी नहीं आई? लेक्चर सुना है ना सारा? जी सर जी सर। मुझे सारा समझ आ गया। ठीक है। आज हमने NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कोई थोड़ा सा डिस्कस किया है, जिसमें इस टेक्निक में आप ये देखते हैं कि कुछ न्यूक्लियाई जो हैं उनकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है वो आप स्टडी करते हैं। इसके बाद इसकी कुछ हिस्ट्री आपको बताई गई है। ये ईयर्स आप लोगों ने जो है ना इनको याद करना है कि किस NMR में क्या हिस्टोरिकली क्या इम्प्रूवमेंट और एडवांसमेंट्स हुई। लोगों के नाम याद करने हैं, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन याद करना है। देखेंगे कि आप कैसे, किस बंदे ने 2002 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, और ये चीज़ें आप। उसके बाद आपको ये बताया गया है कि कुछ फर्मियंस होते हैं, कुछ बोसॉन्स होते हैं। फर्मियंस कौन से हैं? अगर ऑड mass nuclei with odd number of nucleus। इसके बाद आपको यहाँ पे न्यूक्लियाई ऑफ सम एटम्स जिनकी स्पिन जो है वो 139 तक दिखाएगी, जिनकी स्पिन होती है वो वाले न्यूक्लियाई। कुछ न्यूक्लियाई जिनकी स्पिन होती नहीं। मूविंग चार्ज पार्टिकल्स जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। बात असल में यूं है कि जब भी एटम को आप देखते हैं तो एटम में सेंटर में एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस क्या आप लोगों की कभी अजानें आना शुरू हो जाती हैं इधर? ये सर वो इश्तियाक भाई ने पता नहीं क्या यार किया हुआ लगता है। उसकी क्लास 12 बजे रखें फिर भी वो सुबह की अजान सुना देता है इसने। जियाउल्लाह ने नहीं सर ये मेरे पास नहीं है, मैं तो सेपरेट रूम में बैठा हूँ, लगता है इश्तियाक के है। सही है जी, सही है। नमाज पर शक ना पड़ता हो लेकिन ट्यून सुना देता है। तो इश्तियाक साहब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि
एक जो एटम है उस एटम में दो पार्ट्स हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक एरिया, एक न्यूक्लियर एरिया। इलेक्ट्रॉनिक एरिया के ज़रिए जब आप कंपाउंड्स का एनालिसिस करते हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिसमें आप केमिकल के इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हुए उसका स्पेक्ट्रम लें, तो उनको आप नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESR। लेकिन यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम जो है उस पे जाके ये देखते हैं कि उसकी कौन सी खूबी को, प्रैक्टिस को आप यूज़ करके तो किस तरह से आप एक किसी अननोन सैंपल का एनालिसिस कर सकते हैं या उसे बता सकते हैं कि ये कौन सा सैंपल है। उसके लिए जो यहाँ पे बुनियादी चीज़ इस्तेमाल होती है वो यही बताया गया है कि जो न्यूक्लियर है उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो हर वक्त स्पिन कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे एटम्स के प्रोटॉन स्पिन कर रहे हैं, कुछ के प्रोटॉन स्पिन करेंगे, कुछ के नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कहा हुआ है द न्यूक्लियस ऑफ सम एटम्स हैविंग स्पिन, द न्यूक्लियस ऑफ मैनी एटम्स डोंट हैव द स्पिन। जिनकी स्पिन नहीं होती उनकी एग्जांपल्स ये हैं, जिनकी स्पिन है उनकी एग्जांपल्स ये हैं। आगे बात हमने की थी कि बिजली क्या चीज़ है, करंट क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है। आप कहते हैं कि जब कोई प्रोटॉन, प्रोटॉन कहते हो कि इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन सर, दोनों हो सकते हैं सर। ठीक है, तो बचपन में हम ये कहते थे, छोटी क्लासेस में हम ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप करंट का नाम देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा आगे आते हैं तो आप कहते हैं कि किसी भी किस्म का चार्ज पार्टिकल अगर वो मूव कर रहा है, किसी वायर में से मूव कर रहा है, तो उसको आप, या वायर है या किसी मीडिया है, किसी सोल्यूशन में से भी मूव कर रहा हो, तो उसे आप करंट का नाम देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बात ये की है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, आगे लिखा है जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात भी आपसे पहले हो चुकी है कि जहाँ कहीं भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के गिर्द एक मकनातीसी ताकत इंड्यूस हो जाती है या खुद ब खुद वहाँ पे ट्रिगर अप हो जाती है, छिड़ जाता है कोई मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे होगा उसके 90 डिग्री पे उसके सराउंडिंग में थोड़ा सा, बिल्कुल माइनर सा मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी है, वो वहाँ पे जनरेट होगा। लेकिन ये किस केस में होगा? ये उसी केस में होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे मौजूद होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा चार्ज पार्टिकल के जरिए। तो चार्ज पार्टिकल्स कौन से? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की बात तो हम कर नहीं रहे क्योंकि आप NMR पढ़ रहे हैं। तो NMR में, NMR टेक्निक में आप जिस इलेक्ट्रिसिटी या जिस बिजली या करंट की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियाई है। तो न्यूक्लियाई जो हैं, प्रोटॉन जो हैं, वो कहाँ पे हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में वो एक जगह पे ठहरे हुए हैं, तो फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज कैसे हुआ? तो उस फ्लो ऑफ चार्ज की कंडीशन को पूरा करने के लिए आप ये कहेंगे कि वो जो प्रोटॉन्स हैं उस न्यूक्लियस में उसी जगह पे, सेम जगह पे खड़े खड़े स्पिन कर रहे हैं। तो उनकी जो स्पिनिंग है वो उस कंडीशन को पूरा करती है
जो कि हमें चाहिए कि उनका फ्लो होना चाहिए, क्योंकि खड़े हुए इलेक्ट्रॉनों को तो आप बिजली नहीं कहते। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए इसे इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स generate a magnetic field when placed between the। अब आगे आगे बात, ये तीन बातें करने के बाद ये कि आपके पास हजारों, या आप यूं समझ लें आपके पास 1 बिलियन प्रोटॉन्स हैं। हर प्रोटॉन की अपनी कोई स्पिन होगी, कोई शुमाल की तरफ स्पिन कर रहा होगा, कोई यानी उसका स्पिनिंग एक्सिस अगर आप लें, एक चीज़ बॉल है, बॉल को आप घुमाई जा रहे हैं, वो बॉल जो स्पिन कर रही है लेकिन वो किसी एक्सिस की स्पिन कर रही है, वो जो एक्सिस है उसकी तो डायरेक्शन होगी। लेकिन जब आप एट रैंडम 1 बिलियन मॉलिक्यूल्स को एक सैंपल ट्यूब में या किसी बहुत बड़े हॉल में आप वैसे ही छोड़ दें, तो वो एट रैंडम कोई उधर को कोई उधर को किसी न किसी डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे। तो उनकी जो डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन्स हैं वो दो तरह के सेट के अंदर आप उसको क्लासीफाई कर देते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि आप उस हॉल के जिसके अंदर वो सारे वो सैंपल ट्यूब के दीवारों के गिर्द या उस हॉल की दीवारों के गिर्द जिसमें अंदर वो एट रैंडम बहुत से बिलियन मालिक्यूल्स बिखरे पड़े हैं, उसके ऊपर बाहर से एक बहुत हैवी किस्म का मैग्नेटिक पावर जो है वो अप्लाई करें। वो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो अप्लाई करेंगे आप, तो उसके अप्लाई करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो स्पिनिंग है उनकी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। आधे प्रोटॉन्स जो हैं वो स्पिन कर जाएंगे या अपने आप को अलाइन कर लेंगे उनके अप्लाइड फील्ड के साथ, और आधे जो हैं वो उसके अपने आप को उसके अगेंस्ट कर देंगे। इस तरह से ये दो क्लासेस में बट जाएंगे। तो आधे प्रोटॉन आप देखेंगे जिन्होंने मुखालफत की, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट हो गए, और आधे प्रोटॉन्स आप देखेंगे कि उन्होंने अपने स्पिन एक्सिस को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर लिया। तो इस तरह से दो एनर्जी लेवल्स बनेंगे। जिन्होंने खुद को उनके साथ अलाइन कर लिया वो कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, उनका एनर्जी लेवल जो है वो कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, उनका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। जब उनका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तो आप ये कहेंगे कि इनके दरमियान अब एनर्जी का एक वाज़े फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया है। एनर्जी डिफरेंस आप ऑब्जर्व करेंगे। वो जो एनर्जी डिफरेंस आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको ये स्लाइड नज़र आ रही है? यस सर। ठीक है। तो आप ये जो दो क्लासिफिकेशन आपने की, इनको दो हिस्सों में आपने बाहर से अप्लाइड फील्ड अप्लाई करके, मकनातीसी फील्ड अप्लाई करके दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना आपने इनको। ये जो दो हिस्सों में डिवाइड किया आपने, ये अब आप चाहते हैं कि जो लोअर एनर्जी वाले हैं उनको आप उठा के हायर एनर्जी पे ले जाएं। तो जब आप लोअर एनर्जी वालों को हायर एनर्जी पे ले जाना चाहेंगे तो आपको वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो इफ़ यू हैव टू provide energy to compensate this energy difference or jump the protons from lower energy levels to the higher energy levels, then what type of energy you will provide? You have to provide the energy which is comparable with that energy levels, and the electromagnetic radiations energy जो है वही इसके साथ कंपेरेबल एनर्जी है। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से
कौन सी एनर्जी कंपेरेबल है बताएं। रेडियो वेव्स रेडियो वेव्स की हम बात करते हैं। क्यों रेडियो वेव? इसलिए कि रेडियो वेव जो है वो आप लॉन्गर वेवलेंथ ये लॉन्गर वेवलेंथ, लो एनर्जी। एनर्जी बहुत थोड़ी है। और लेस एनर्जी होती होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम इस तरह का इसके अंदर फिर एक सिग्नल उस जगह पे देखेंगे। मसलन ऐसा होगा ना कि आप एक सैंपल को टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, टेस्ट ट्यूब में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रख देंगे और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी एक बीम जो है वो उधर से आप पास आउट करना शुरू कर दें। उसके ऊपर जब आप पास ऑन करेंगे तो एनर्जी एक तरफ से फर्ज किया आपने, शुआएं जो हैं वो आ रही हैं, रास्ते में एक ट्यूब है, उस सैंपल ट्यूब के अंदर सैंपल है। सैंपल कोई भी हो सकता है। आपको मतलब किसी फोरेंसिक लैब ने कोई सैंपल दिया है, किसी फार्मा इंडस्ट्री ने कोई सैंपल दिया है, आपको किसी भी और इंडस्ट्री का कोई सैंपल है, कोई ब्लड सैंपल है, कोई भी सैंपल अगर आपने एनालिसिस करना है, किसी ब्रेन का कोई टिश्यू है उसका सैंपल है, आप ये एनालाइज करना चाहते हैं कि इसमें कौन सा केमिकल है, किसी क्राइम सीन का कोई सैंपल है, तो आप उसको सैंपल ट्यूब के ऊपर एक तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का रेडियो वेव्स जो हैं उसको आप एक एक करके उसके ऊपर फॉल करेंगे। जब एक वेव उसके ऊपर आएगी, फिर दूसरी वेव आएगी, फिर तीसरी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी आप बढ़ा के उसके ऊपर फॉल करा रहे हैं। यानी 200 नैनोमीटर फर्ज कर लें आप, 200, 300, 400, इस तरह आप उसकी जो इंटेंसिटी है या हर्ट्स में आप बात कर लें कि वो आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब आप वो उसके ऊपर फॉल कराएंगे तो हर वेव का जो एनर्जी लेवल है वो इस डिफरेंस के बराबर नहीं होगा। जो उन दो सेट के दरमियान एनर्जी का फर्क था उसके बराबर नहीं होगा। जहाँ पे जाके आप समझेंगे कि आप वो वाली वेव इस सैंपल के अंदर से पास ऑन हुई है जिसका एनर्जी लेवल इसके साथ मैच कर जाता है, उस वक़्त आप ये कहेंगे कि उस एनर्जी को वो सैंपल जज़ब कर लेंगे, उनके प्रोटॉन जो हैं वो एब्जॉर्ब करके खुद लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी पे चले जाएंगे। तो उस जगह पे ये जो ना भाई इस तरह ना करें। अच्छा, उस जगह पे जहाँ पे आप ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वो एनर्जी जो है वो कितना वक्त हो गया, वो एनर्जी उसके साथ मैच कर जाए, उस वक्त वो एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये जो सीधी लाइन है, ये लाइन क्यों आ रही है? ये लाइन इसलिए आ रही है कि जो भी रोशनी पीछे से आती थी सैंपल के अंदर से गुजर के आगे चली जाती थी, आगे जो पेन था जिसने पेपर के ऊपर एक लाइन बना रहा था उसको वो ताकत मिलती जा रही थी और वो लाइन बनाई जा रहा था। लेकिन जिस जगह पे उसने उस रोशनी को जज़ब कर लिया वो रोशनी तो आगे गुजरी नहीं है। जब रोशनी आगे गुजरी नहीं है तो उस पेन को वो जो एम्पलीफाइड करंट मिल रहा था जिससे वो एक लाइन ड्रा कर रहा था वो डिस्कनेक्ट हो गया। जब वो डिस्कनेक्ट होता है तो वो पेन जो है वहाँ पे सिग्नल आपको एक नज़र आता है या वो जो स्मूथनेस ऑफ लाइन होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और आपको एक पीक सी दिखती है। जैसे कि वो करंट ख़त्म होते होते वैसे ही फिर दोबारा उतनी देर में पीछे से एक और वेव आ जाती है, वो वेव दोबारा उसे मिलती है तो वो फिर अपना पेन जो है वहाँ पे एक स्पेक्ट्रम को ड्रा करना शुरू कर देता है। जैसे कि आप ईसीजी देखते हैं हॉस्पिटल्स के केस में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक की जाए कि एक यहाँ टर्म इस्तेमाल होती है कि शील्डेड क्या चीज़ है। शील्ड का मूवी मतलब आप लोग आजकल मेरा ख्याल है कि काफ़ी वो ड्रामे शामे भी देख रहे हैं। शील्ड का मतलब है डाल।
डाल जो है वो आर्मी वाले या जो पुलिस वाले जो धर्मों के दरमियान वो अपने आप को सेव करने के लिए अपने सामने एक एक प्लेट जो है लोहे की अपने आप को बचाने के लिए ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे आप शील्ड ले रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इस एनएमआर में इस शील्ड का क्या मतलब है। इस एनएमआर में दो मालिक्यूल आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताए गए हैं ताकि आप शील्ड को समझ सकें कि शील्डिंग किसकी ज़्यादा है और किस मालिक्यूल की शील्डिंग कम है। मिथाइल क्लोराइड दिखाया गया, CH4 दिखाया गया। मिथाइल क्लोराइड में 3 प्रोटॉन्स हैं, CH4 में 4 प्रोटॉन्स हैं, और जो CH3 है उसमें कहा गया कि लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और CH4 में कहा गया हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। Proton nuclei are shielded by the magnetic field produced by the surrounding electrons. Surrounding electrons से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उन्होंने भी तो कुछ रोल प्ले करना है। Higher the electron density around the nucleus, higher the magnetic field required to cause resonance. आप यूँ समझे कि जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे करंट होगी, बिजली होगी। जब वो करंट या बिजली है जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स कि वहाँ पे छोटा सा माइनर सा मैग्नेटिक फील्ड तो होना है ना जी। वो जो माइनर सा मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर, वो ये यहाँ पे बात हो रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस कहाँ पे, प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस में है ना, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होते हैं। अब एक के शेल है, फिर उसके ऊपर एल शेल है, एन है। अगर किसी प्रोटॉन के बाहर बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कवर्स हैं, क्या होगा, उस हर इलेक्ट्रॉनिक कवर की वजह से उसके गिर्द माइनर सा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जब आप उसके ऊपर बाहर से मकनातीसी फील्ड अप्लाई करेंगे, वो मकनातीसी फील्ड जो है वो उसको आप कहेंगे कि उसका अपना जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो उसे कवर कर देगा। यानी एक दो तरह के मकनातीसी फील्ड हैं, एक जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक मकनातीसी फील्ड है जो उसके अपने इलेक्ट्रॉनों की वजह से पैदा हुआ। अब उसके इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो पैदा हुआ वो उसको उस बाहर वाले का इफेक्ट उस तक नहीं आने देगा। जब वो बाहर वाले का इफेक्ट उस तक नहीं आने देगा तो इस मीन कि वो इसको शील्ड कर लेगा। तो इस तरह से वो तमाम मालिक्यूल्स जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मौजूद हो, उसको आप कहेंगे कि वो सारे के सारे बड़े शील्डेड हैं। तो आप देख लें, मिथाइल क्लोराइड है, मीथेन है, मीथेन में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मिथाइल क्लोराइड में लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्यों लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? 7 क्लोराइड ने उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया। तो बहरहाल 4 यहाँ पे पॉइंट्स आपके लिए बनते हैं जो एक स्पेक्ट्रम में बड़े अहम होते हैं। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ सिग्नल्स, दूसरा है पोजीशन ऑफ सिग्नल्स,
और तीसरा है रिलेटिव एरिया अंडर द सिग्नल, और फिर था स्प्लिटिंग पैटर्न, हाउ मैनी नेबरिंग हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे, जितनी किस्म के प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे। या कि ये नहीं है कि उसमें हाइड्रोजन अगर 25 हैं तो उसमें नंबर ऑफ सिग्नल भी 25 आ जाएंगे। नंबर ऑफ सिग्नल्स जितने हाइड्रोजन ये होंगे उतने नहीं होंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स उतने होंगे जितनी किस्म के या जितने ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हो। सिग्नल किस जगह पे आएगा दूसरी बात अहम है, जिसे आप केमिकल शिफ्ट का नाम देते हैं, यानी एक स्पेक्ट्रम के ऊपर, ये अगर एक स्पेक्ट्रम है तो ये सिग्नल कभी 5 पे होगा, कभी 7 पे होगा, कभी 9 पे होगा, कभी 2 पे होगा, ये सिग्नल शिफ्ट होता रहेगा इधर उधर, तो इसको आप कहते हैं केमिकल शिफ्ट। ये जो केमिकल शिफ्ट है ये दूसरी अहम बात है। पहली अहम बात है कि सिग्नल्स की तादाद क्या होगी, दूसरी अहम बात है सिग्नल किस पोजीशन पे आएगा स्पेक्ट्रम, तीसरी अहम बात है कि उस सिग्नल में हर सिग्नल के नीचे ना एक एरिया है, ये सिग्नल जो है इसने कुछ एरिया कवर किया हुआ है। जैसे ये एक मखलूक को देखें, इस पिरामिड के अंदर कुछ एरिया इसने कवर किया, तो ये अगर सिग्नल बहुत ऊपर तक यहाँ तक बना हुआ हो तो जाहिर है एरिया ज़्यादा कवर किया होगा। तो वो ज़्यादा एरिया कवर करने का मीनिंग ये होता है कि इस एक जगह पे, इस एक सिग्नल के अंदर इस तरह के बहुत से प्रोटॉन्स हैं, इसलिए सिग्नल रिलेटिवली सिग्नल एरिया इंटीग्रेशन ज़्यादा है। हाउ मैनी हाइड्रोजन ऑफ ईच टाइप, यानी एक किस्म के प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। स्प्लिटिंग पैटर्न, हाउ मैनी नेबरिंग हाइड्रोजन्स, यही जो सिग्नल है ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की एक पीक हो, ये 2 छोटी छोटी पीक्स में डिवाइड हो सकता है, 3 में डिवाइड हुआ हो सकता है। ये जो स्प्लिटिंग पैटर्न है ये फोर्थ इम्पोर्टेंट बात है किसी NMR स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट करने के लिए। हाउ मैनी नेबरिंग हाइड्रोजन्स मीन्स इसके नेबर्स में जितने हाइड्रोजन्स होंगे वो ये फैसला करेंगे कि ये कितने तरह से स्प्लिट करेगा खुद को। अभी हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल्स। Magnetically equivalent hydrogens resonate at the same applied field. Magnetically equivalent hydrogens are also chemically equivalent. जो प्रोटॉन्स मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होते हैं वही केमिकली भी इक्विवेलेंट होते हैं। इसके बाद ये CH4 में, CH3 में, ये आप देख रहे हैं। हम अब आ जाते हैं इस स्लाइड पे। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि ये अगर इस कार्बन को देखें तो हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स हैं इसमें, CH2 की शक्ल में ये मॉलिक्यूल इसमें अटैच है। तो 2 जो हाइड्रोजन्स हैं इसमें CH3 ये 3 हाइड्रोजन्स हैं। ये सारे के सारे हाइड्रोजन्स एक ही तरह के हैं, ये एक ही जगह पे आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जज़ब कर लेंगे
जब ये एक ही जगह पे अपने आप आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जज़ब कर लेंगे तो इनका सिग्नल भी आपको एक ही जगह पे दिखाई देगा। इसी तरह ये CH3, इस केस में एक सिग्नल है, इस केस में दो सिग्नल। क्यों? यहाँ पे दो सिग्नल इसलिए आए कि इसमें CH3 वाले दोनों प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, लेकिन जो अंदरूनी कार्बन रिंग वाली कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है वो चार एक तरह के, उन चार की वजह से 4 प्रोटॉन की वजह से ज़्यादा एक सिग्नल आएगा और इन 6 की वजह से ज़्यादा एक सिग्नल आएगा। इस तरह इसमें आप देखो तो ये तीनों सेट में एक ही तरह के हैं, यानी इसके अंदर एक ही सेट ऑफ प्रोटॉन्स है। एक ही सेट ऑफ प्रोटॉन का मतलब एक ही टाइप के प्रोटॉन्स हैं, इसमें एक तरह के नहीं है। क्यों? ये कार्बन और तरह की, ये कार्बन और तरह की, ये कार्बन के करीब ब्रोमाइड है और इस कार्बन के करीब इस ब्रोमाइड का उतना इफेक्ट नहीं है। तो लिहाजा ये जो एक सिग्नल यहाँ पे आएगा, एक सिग्नल, दो सिग्नल आएंगे। इस तरह इसमें ये मिथाइल और ये मिथाइल एक जैसे हैं और अंदरूनी कार्बन का प्रोटॉन एक जैसा नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको दो सिग्नल। इस केस में ये CH2 को ब्रोमाइड और का तरह इफेक्ट करता है, इसको और तरह पे और इसको और तरह के। ये यूँ कह लें ये CH2 के इस तरफ मिथाइल और इस तरफ CH2Br है, लेकिन इस केस में इसके इस तरफ और चीज़ है, इस तरफ और चीज़ है, लिहाजा ये CH2 और ये CH2 एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और ये तीन सिग्नल्स यहाँ पे आएंगे। इस मालिक्यूल पे स्पेक्ट्रम में आपको तीन सिग्नल्स नजर आएंगे। यहाँ पे इसी तरह ये CH3 और ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं, इन्वायरमेंट इनका मुख्तलिफ है। यहाँ पे भी CH2 जो जो बिल्कुल सेंट्रल है वो अलहदा है, इसको और इसको देखें तो सेम इन्वायरमेंट है। इसके इस तरफ देखो और इसके इस तरफ और इस तरफ, दोनों साइड्स पे नेबर्स में एक ही तरह का इन्वायरमेंट है, इसलिए आप ये कहेंगे कि इसके दो सिग्नल आएंगे, इसके आपको तीन सिग्नल्स नजर आएंगे, CH3 CH2 Cl। यहाँ पे तीन सिग्नल क्यों होंगे? एक सेट है प्रोटॉन्स का CH3 वाला, दूसरा सेट है CH2 वाला, और एक सेट इसमें हर कार्बन में जो अंदर अभी यहाँ पे वाजे नहीं किया हुआ, लेकिन हर कार्बन पे भी तो एक प्रोटॉन लगा हुआ है, उस उन चार प्रोटॉन्स की वजह से भी एक सिग्नल दिखाई देगा। तो लिहाजा इसके तीन सिग्नल्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे। तो जो आपका दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे फर्दर कि ये जो किस तरह के सिग्नल्स कितना केमिकली शिफ्ट करते हैं, वो किस तरह का सिग्नल केमिकल शिफ्ट वैल्यू कौन सी पे शो होगा, किस जगह पे आपको दिखाई देगा। इसलिए ये 0.9 ppm, 1.3, 1.5 ये जो वैल्यूज़ हैं इनके बारे में हम बात करेंगे और कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें कि ये होगा कि अप फील्ड क्या है, डाउन फील्ड क्या है, और इनकी इंटीग्रेशन में सिग्नल्स का जो हाइट है वो कंपैरेटिवली एक दूसरे से कम या ज़्यादा कैसे होती है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ सबको, लेकिन आप अपने मोबाइल्स के ट्यून्स और इधर उधर की जो चीज़ें आप दरमियान में मुझे सुनाते हैं उनको ज़रा बंद रखेंगे।
जी ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो मालिक्यूल है इसमें सिग्नल इसके दो क्यों आए हैं, इसके चार सिग्नल क्यों हैं और इसके तीन क्यों हैं? जी ये सामने अभी ऐसे वो सीरियस, ये कौन है? अनिल है सर। ये पता नहीं क्यों सीरियस है। बच्चे ये सर म्यूट मैं कर ये दो, भांजा जिसको भी पाप प्रॉब्लम है। अनिल ये भी पढ़ रहे साथ। जी बताएं, ये मैंने क्वेश्चन किया है कि इसमें जो 2, 4 और 3 हैं, क्यों इसके सिग्नल 3 है, इसके 2 और इसके 4 है? ये सामने कुरतुलैन है। कुरतुलैन आप बताओ इसमें दो क्यों सिग्नल्स आ रहे हैं? मैं बताऊं सर? जी आप बताओ, आप वारिस हमीद आप बताओ। सर ये मैं सर बताता हूँ वारिस साहब। जी वारिस साहब यार बात सर डाइक्लोरोप्रोपेन के अंदर दो तरह के प्रोटॉन है, एक सेंटर वाले जो है हाइड्रोजन, और दो जो है ना टर्मिनल जहाँ क्लोरीन लगी है, तो इस वजह से दो सिग्नल है। नहीं, वैसे तो ये तीन तरह के सेट नहीं बनते, एक CH2 ये हो गया, वो सर आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन एक ये सेंटर वाला क्या जो हो गया। हाइड्रोजन है ना, अच्छा इसके इन्वायरमेंट में ना जो प्रोटॉन है वो इक्वल इन्वायरमेंट है इसका। तो जो मतलब आप इस तरह कह सकते हैं कि इसमें से टर्मिनल वाले जो है वो सेम हो गए और एक सेंटर वाला हो गया, तो दो तरह के प्रोटॉन हो गए। जो टर्मिनल है उनके लिए ट्रिपलेट जो है वो पीक बनेगी और उसका सिग्नल जो है वो थोड़ा इंटेंस होगा, और जो सेंट्रल है उसके लिए पीक जो है वो बननी है 1 प्लस 10, मतलब मल्टीप्लेट पीक बननी है उसके लिए। सही है, वो उस तरफ बाद में जाएंगे। ठीक, अभी ये कोई और, इसके 4 सिग्नल क्यों हैं? जी ये सामने नाम आ रहा है 51 का। इशरत फातिमा आप बताइए, ये 4 सिग्नल इस मालिक्यूल में क्यों है, ये जो मैंने हाईलाइट किया? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि 4 जी सिग्नल। सर, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप तो वैसे दोनों साइडों पे लगा हुआ है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप उसके साथ CH लगा हुआ है और नेगेटिव ग्रुप साथ अटैच है, और इस साइड पे जो है मिथाइल ग्रुप के साथ CH2 है। इस वजह से हम इसे 4 सिग्नल कंसीडर करेंगे। 2 इसमें इस वजह से था क्योंकि इन जो CH2 और CH2 दोनों साइडों पे नेगेटिव ग्रुप साथ अटैच है, इस वजह से इसे हम 2 सिग्नल कंसीडर करेंगे। और सेंटर वाला जो है वो CH2 है, उसे मतलब फर्स्ट और दोनों साइडों वाले उसे एक ही सेम यानी कि मतलब प्रॉपर्टी दे रहे हैं। ठीक ठीक जी। नेक्स्ट आयशा है इधर? जी मैं सर सर। बताऊँ जवला खान सर। आयशा आलम आप हैं क्लास में? जी सर, मैं हूँ क्लास में सर। जी बता। आवाज आ रही है सर? जी आ रही। अब आप बताएं कि इसमें ये जो मालिक्यूल मैंने हाईलाइट किया है, जी ये वाला, इस रिंग में प्रोटॉन होते हैं ना हाइड्रोजन, इस रिंग में जी सर। वो वाले हाइड्रोजन 4 होंगे, हर कार्बन के ऊपर एक एक, वो चारों जी एक जैसे एक सेट बनेगा। एक सेट है सर, दूसरा सेट C2Cl वाला है और तीसरा CH3 वाला है। ठीक हो गया। इस तरह इस वजह से इसके 3 सिग्नल्स आ गए। तो आज की क्लास आपकी तकरीबन एंड हो गई है। सर तो अटेंडेंस चेक कर ले, अटेंडेंस लगी हुई है सबकी। अटेंडेंस आप लोगों ने लगाई नहीं? सर लगा दो, उधर शो भी नहीं होती कभी कभी।
नहीं लगी हुई है टेनिस, कोई इशू नहीं। ठीक है सर। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद फिर दोबारा 1 बजे। ठीक है जी। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज हाफिज सर। सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।